Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. First, x plus y is equals to 4. Second, x minus y is equals to 2. Third, y is equals to 3x. Fourth, 3 is equals to 2x plus y. Okay, I hope you understand that what we have to find in this question is we need to draw the graph. So let me explain it. We need to draw the graph of each of the following linear equation. So let us start from the first part. If you look at this first part here, the x plus y is given 4 in the first part. So first of all, we need to find out the points. So पहले हमें points find out करने होंगे and minimum 3 points we need to draw the graph. So first of all, let us find out the points. Points means I am talking about the solution. सॉल्यूशन मीन्स द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. एक हम लोग इसको लेट करते हैं, एक एक्स को जीरो ले लेते हैं. सो देन व्हाट इज वाई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? 4. यस राइट, इट्स 4. if x is 1, if x is 1, what is y? 3. yes, it's 3 because सम इनका 4 आना चाहिए x और y का. ठीक है. if x is, suppose if x is minus 1, what is y? 5. Yes, it's 5. So the sum is 4. Now, after finding this solution, after finding the points, so we have to mark that point on this Cartesian plane. इस Cartesian plane पे हम लोग इन points को mark करेंगे. So now let me mark that points on this. So the first point is 0, 4. So let me write that points here. The point is 0, 4 and point is 1, 3 and point is minus 1, 5. So minimum 3 point हमें find करने हैं. This thing we have already discussed why we have to find the 3 points, right? So 0, 4, 0, 4, x की value 0, ये first point mark करते हैं, और y की value 4. So the point is here, right? The second point, x value is 1, एप्सिका is 1, ordinate is 3. एप्सिका ordinate we have already discussed. 1, 3, the point lie here. Minus 1, 5. Where is x value is minus 1? Third point. Here it is. Sorry, it is here, minus 1. And where it is 5? 5, y value is 5. So the point is here. So now what we need to do is, we need to draw a line which passes through these points. So that is the graph. So ये line यहाँ पे इन तीनों पॉइंटों से पास करती हुई. So this is the line. It goes on this side and it goes on this side. So this is the graph. So we can say that this is the graph of the line x plus y is equal to 4. I hope this is the final solution. So we need to draw the graph. So I hope you understand this. Now let's move to the next part. Look at this part, x minus y equal to 2. तो पहली चीज हमें फाइंड करना है पॉइंट. सो 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. Okay. So x, y. So if x is 0, suppose I need to let y here. या इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो पॉइंट फाइंड करने में आसानी रहेगी. तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. x इज इक्वल टू, इफ आई शिफ्ट y ऑन दिस साइड, अगर y को इस साइड में शिफ्ट करें, इट बिकम y प्लस 2. सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो इट इज इजी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, राइट? अब इसमें देखिए y को लेट करता हूं 0. सो व्हाट इज x? Anyone? Sir, 2. Yes, right. It's 2. So y को 0 रखेंगे तो x 2 आ जाएगा. If I take y equal to 1, what is x? Anyone? 3. Yes, absolutely right. It's 3. And if I take x is equal to 2, then what is x? Sorry, y equal to 2, then what is x? 4. Yes, it's 4. Simple. यहाँ पे रखते जाइए y की वैल्यू पे और आपको x मिलता जाएगा. x क्या है? बेसिकली y से 2 ग्रेटर है. तो अगर y 0 होता है तो x 2 हो जाएगा. y अगर 1 है तो 2 ग्रेटर मतलब 3 हो जाएगा. If y is 2, so 2 ग्रेटर है तो 4 हो जाएगा. Now let us mark this point on this Cartesian plane. So this is x axis, this is y axis. So now let us mark the point. तो फर्स्ट पॉइंट इज 2, 0. 3 पॉइंट हमने फाइंड किए, A, B, C.
सो द फर्स्ट पॉइंट इज 2,0। तो ऐसे पॉइंट को लेते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट इज 3,1 एंड थर्ड पॉइंट इज 4,2। सो नाउ लेट मी मार्क दिस पॉइंट ऑन हियर। तो 2,0 x की वैल्यू 2, पहले a को मार्क करते हैं, 2 यहाँ पे है और y की तरफ कितना चलना है 0, तो दिस इज द पॉइंट a। ओके, लुक एट दिस b पॉइंट। x की जगह x को मूव करना है 3 यूनिट, तो x यहाँ पे आ गए 3 यूनिट, और y की तरफ मूव करना है 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दैट इज द पॉइंट। सो दिस इज पॉइंट b, right? Now look at this point C. X epsica is 4 and ordinate is 2. So epsica is 4 here and ordinate is 2 here. So where this point made it at this point, right? So this is point C, this is point B. So now let us draw a line which passes through these points. एक line हम लोग बनाएंगे जो इन तीनों पॉइंटों से पास करेगी, right? So if I find 3 points and एक line बन जा रही है easily, so that means our solution is right. So this is the equation of the line x minus y is equal to 2, and this is the graph of this equation of a line, right? So graph of a equation of a line we have already discussed when we were discussing the concept, right? In the previous class is a straight line always, right? Now let's move to the next part. I hope this part is clear to you all. Okay. Now look at this third part here. In this third part, y is 3 times of x. So now let me find out the points here. पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम फाइंड 3 पॉइंट्स। ओके, सो इफ यू लुक एट द रिलेशन हियर, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। अगर x होगा 0, व्हाट इज y? 0. यस, इफ x इज 1, व्हाट इज y? एनीवन? 3. Yes, it's 3. If x is suppose -1, what is y? -3. Yes, it's -3, definitely. So the y equal to 3 times of x, right? So now let me mark these points. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x होता है और नीचे की तरफ -y। तो मार्क करते हैं, पहला पॉइंट है 0,0, दिस इज पॉइंट a, तो 0,0 इज हियर, राइट। 1,3 पॉइंट B, 1, x is 1, y is 3, so पॉइंट आएगा यहाँ पे। -1, x -1 is here, -3 is here, so the point is ये आएगा यहाँ पे, right? So now let's draw a line which passes through these 3 points. Okay, so this is the line which passes through these 3 points. तो देख रहे हैं आप, पॉइंट मार्क करने पे लाइन हमारी बन जाती है। And what you have to do, you have to draw these points on the graph paper. आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, then you will get the exact answer. So this is the answer for this. The graph for this given equation is, this is the graph, right? I hope it's clear to you. Now let's move to the next question. Look at this fourth part here. So first of all, let us find out the points. 3 points. 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ये बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख लेते हैं x, यहाँ पे लिख लेते हैं y। Look at this x and y. So this is x axis, this is y axis, this is -x, downward -y. So let me write it in a simplified form first. तो पहले इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख लेता हूँ, तो फाइंड करना आसान होगा। If I shift this 2x on this side, so it become 3 minus 2x is equal to y. So आप y को फाइंड कर लें, यहाँ पे y इक्वल टू लिख लें इसको या x इक्वल टू लिख लें, इट्स योर चॉइस। देन इट इज लिटिल बिट इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या आ गया इक्वेशन, ये आ गई है y इज इक्वल टू 3 minus 2x। अब इसे फाइंड करते हैं, अब x को पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। When x is 0, what is y? 3. Yes, it's 3. When x is 1, what is y? x को 1 रखेंगे तो 3 minus 2 is equal to 1. Yes, it's right. If x is 2, what is y? -1. -1. Yes, it's -1. So now the next thing is mark these points. इन points को mark करेंगे ग्राफ के ऊपर. This is point A, this is point B, this is point C.
So 0,3 FC का 0 ordinate 3, x की value 0, y की value 3, so the point is here, right? 1 1 FC is 1, ordinate is 1, so the point is here. 2 minus 1, 2 minus 1, it is 2 here, it's minus 1 here, so the point is here. So this is point A, this is point B, and this is point C. Now let us draw a line which passes through these 3 points, is the graph of that required answer of this question. So this is the line, goes like this, right? So this is the graph for the line equation 3 is equal to 2x plus y. I hope this question is clear to you all. Question number 2. Give the equations of two lines passing through 2 and 14. How many more such lines are there and why? Okay. So if you look at this question number 2, हमें find करना है equations of two lines, दो line की equation, right? So let me write it is equation 1. यहाँ पे equation 1 find करते हैं and यहाँ पे equation number 2. Right. So in this equation 1, it is given that the value of x is given 2 and the value of y is given 14. The value of x is 2, y is 14. So we can, how many equations we can form by these lines? We can form the infinite equations. हम लोग infinite equations form कर सकते हैं by using this. So if there are infinite equations, then sir, through a point, sir, infinite many lines can be also done. Yes, absolutely right. Yes, sir. So if x is 2, y is 14. So first of all, let us form the two equations. दो equations बनाते हैं which satisfy this point. So the equation in this case is it can be written as x plus y. अगर मैं अपने आप से x plus y ले लिया मैंने, so what is x plus y according to the given condition? X is 2, y is 16, y is 14. So it comes out to be 16, right? So this is the equation 1. अगर मैं ले लूं यहाँ पे x minus y, if I write x minus y, so then what is x minus y according to the given condition? 2 minus 14 is equal to minus 12. So like this we can form an infinite equations here. So अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x is equal to y is equal to y x के इक्वल कब होगा? It's 14 given है यहाँ पे. So y is equal to x. तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. So 7 2 14. So this is also the equation. So they ask only the two equation. One is this, second one is this. And how many more such lines are there and why? Suppose एक point है यहाँ पे 2,14. So इससे कितनी लाइन पास कर सकती हैं? Infinite lines can pass. देखो इस पॉइंट से आप कैसे भी लाइन बना सकते हैं. So there are infinite lines which can pass through a single point. Infinite lines can pass through a single point. So the answer for the second part is infinite. Right? How many more such lines are there? Infinite lines are there which can pass through a single point. Right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. If the point 3 and 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. Okay. So this point in the question lie on this line. इसके ऊपर lie करता है. So what is this point given? The value of x in this point is given 3 and the value of y is given 4, right? And this equation is given here 3y is equal to ax plus 7. एक ही इक्वेशन गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है इसमें? a की वैल्यू. अब ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो. अगर x की जगह पे 3 और y की जगह पे
4 अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑल्सो। तो इस पॉइंट को हम लोग, अगर ये पॉइंट इस लाइन की ग्राफ के ऊपर लाई करता है, सो हम इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह क्या रखेंगे, 4 इज इक्वल टू a। x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 3 प्लस 7। नाउ सोल्व इट, 4 3 जा 12 is equal to 3a plus 7. Take the 7 on that side, it becomes 7 become minus is equal to 3a. So it can be written as 12 minus 7, it's 5 equal to 3a. So we can say that a is equal to 5/3 is the answer in this case. तो जो पॉइंट है आपको पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर देना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. I hope this question is clear to you. Yes, sir. Yes. Okay, now let's move to the next question. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write the linear equation for this information and draw its graph. ओके सो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले और फिर ग्राफ बनाना है। सिचुएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। सिटी में टैक्सी फेयर है, किराया जो लगता है इट्स लाइक दिस। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो सपोज यहाँ पे 1 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, देन अगेन इट इज 1 इस तरह से 1 किलोमीटर डिस्टेंस लाइक दिस, राइट। सो जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो रुपीज लगते हैं फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम हियर टू हियर, द चार्ज इज फिक्स्ड। फॉर दिस किलोमीटर द चार्ज इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज दैट चार्ज, इट इज 8 rupees. So for the first kilometer the charge is 8 rupees and it is fixed, right? But look at this word, use here subsequent distance is 5 rupees per kilometer. आगे क्या होता है, अगर वो आगे यहाँ पे डिस्टेंस मूव करते हैं फ्रॉम हियर टू हियर तो चार्ज लगता है 5 rupees. आगे के जितने भी किलोमीटर मूव करेंगे हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज इज 5 rupees. So for the first kilometer charge is only 8 rupees और नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए चार्ज लगता है 5 rupees. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट। अब हमें पता नहीं है यहाँ पे, सो क्या नहीं पता है, एक तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है कितनी डिस्टेंस कवर की है। सो डिस्टेंस कवर इन द क्वेश्चन दे आस्क टू टेक डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर की है x किलोमीटर, राइट। और टोटल जो फेयर लगा है, टोटल फेयर इज ₹y। रुपीज का फेयर लगा है। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन हियर इन दिस केस। अब हमें लिखनी है इक्वेशन। सो टोटल किराया कैलकुलेट कैसे करें, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पहले। अब मुझे जाना है 4 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे 5 किलोमीटर जाना है। सो 5 किलोमीटर कहां से कहां तक होगा, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे यहाँ पे बी पॉइंट पे जाना है, राइट। और मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी मूव करनी है, 5 किलोमीटर। अब इसका चार्ज कैसे पता करेंगे हम लोग, ये कंडीशन देखिए। पहले 8 rupees तो फिक्स है 1 किलोमीटर के लिए, तो 8 rupees फिक्स है, ठीक है। प्लस अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब कितना चार्ज लगेगा, नेक्स्ट किलोमीटर के 5, इस नेक्स्ट के लिए 5, इस नेक्स्ट के लिए 5, इस नेक्स्ट के लिए 5, तो कितना हो गया 20, राइट। 8 rupees तो फर्स्ट के लिए और 20 rupees नेक्स्ट 4 किलोमीटर के लिए। अब ये 5 rupees क्या था, यहाँ पे 5 rupees भी फिक्स है, तो 8 5 rupees, ठीक है। 8 + 5 rupees के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर में चला हूं, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। सो क्या आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। टोटल कितना चार्ज लगा मेरा, 5 4 जा 20, टोटल रुपीज लगे 28। ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ रही है, इस कंडीशन को दोबारा लिखता हूं। 8 rupees लगे 1 किलोमीटर के,
5 रुपीज लगे 4 किलोमीटर के। अब मैं टोटल किलोमीटर कितना चला था मैंने 5, ठीक है। तो ये 4 कैसे आया 5 यहाँ किलोमीटर पे? डिस्टेंस। तो दिस 4 कम्स आउट टू बी 5 में से 1 किलोमीटर को माइनस कर दिया, किस वाले किलोमीटर को, जो 8 रुपीज जिसका पे किया। तो इट कम्स आउट टू बी 28, राइट। नाउ लेट मी राइट दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन हियर। अभी सिचुएशन को क्वेश्चन बनाते हैं। ये 8 तो फिक्स है, टोटल चार्ज निकालते हैं 8, ठीक है, प्लस व्हाट इज दिस 5, ये 5 क्या था यहाँ पे, ये 5 भी फिक्स है, पर किलोमीटर का चार्ज 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ कितने किलोमीटर चले हम लोग, टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, x। तो देखो ये 5 क्या है, यहाँ पे x है, इन द क्वेश्चन दिस 5 इज x, राइट, एंड दिस 28 इज y इन द क्वेश्चन, राइट। अब देखो ये 5 है यहाँ पे, दिस 5 इज x माइनस 1, 8 प्लस 5, ये फिक्स था, 8 गिवन था क्वेश्चन में, 5 भी गिवन था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 28 कितना है, ये y गिवन है। सो इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इज इक्वल टू y। सो दिस इज द इक्वेशन आई हैव फॉर्म। इसको मैं एक बार और समझाता हूं आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो देखो अगर यहाँ पे x डिस्टेंस मूव किया मैंने इस क्वेश्चन में, सपोज यहां से यहां तक x डिस्टेंस हुआ, इतना मूव किया, ठीक है, x डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 1 हो गया, 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू हियर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज, अगर टोटल x है, अगर टोटल डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां से फ्रॉम हियर टू हियर 1 माइनस हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी x माइनस 1, कितनी आएगी, x माइनस 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर ये और x माइनस 1 किलोमीटर ये। सो समझिए इसको, 1 किलोमीटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 1 को 8 से किया तो 8 आया, और x माइनस 1 को कितने रुपीज लग रहे हैं, 5 रुपीज। सो मल्टीप्लाइड इट विद 5 एंड पुट इट इक्वल टू y। तो इसको y के इक्वल रख लेंगे। सो आई होप दिस सिचुएशन इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। एक चीज एक बार एक तरीके से और समझा देता हूं आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी। तो देखो टोटल डिस्टेंस इधर लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितना बचेगा, व्हाट इज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस, सो दिस रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा x माइनस 1। क्यों x माइनस 1 क्यों बचा, क्योंकि 1 को और x माइनस 1 को ऐड करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। अब इस 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगता है, 8 रुपीज, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। x माइनस 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगता है पर किलोमीटर, 5 रुपीज, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे 8 इंटू 1 8 आ गया, 5 इंटू एक्स माइनस 1 5 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करेंगे अगर टोटल फेयर के इक्वल आ जाएगा। टोटल फेयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वल टू y। सो दिस इज द इक्वेशन, आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर। नाउ लेट अस सोल्व these equations and write it in the simplified form. So open the bracket, important question, this is the important question, y, and shift this 8 minus 5 is equal to 2, sorry 3 equal to y. So this is the equation. If I need to write it in the standard form, so इस y को इधर शिफ्ट कर लीजिए, plus 3 is equal to 0. So this is the required equation, right? And we need to draw the graph for this equation also. इसके लिए ग्राफ भी बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको ले लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, we need to find out the points. So this is the first part. Now let us move to the second part of this question. So ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए we need 3 points, हमें 3 पॉइंट चाहिए। Let me find that point on this side. इस इक्वेशन के मिनिमम 3 पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ग्राफ 2 पॉइंटों से भी आ जाता है, बट इट इज एडवाइजेबल टू यू दैट फाइंड 3 पॉइंट्स। देखो यहां से इस इक्वेशन से फाइंड कर लो या इससे, दोनों सेम ही है। अगर मैं x को 0 ले लेता हूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, सो व्हाट इज y इन दिस केस, एनीवन, इफ x is 0 व्हाट इज y,
Plus 3. यस राइट, y इक्वल टू 5x प्लस 3 है। अब मैं बोलता हूं x को 0 ले लो तो y कितना बचेगा 3। अगर मैं बोलूं x को ले लो आप 1, सो देन व्हाट इज y? Eight. So 3. नो, इफ x is 1 Sorry. what is y? 8. यस इट्स 8। x को 1 रखो यहाँ पे तो 5 बचेगा, 5 प्लस 3 8। यस, इफ x इज सपोज इफ x इज -1 व्हाट इज y? So -2. यस इट्स -2। सो इफ आई पुट, इसको मैं बता दूं कैसे निकल रहा है। अगर मैंने लिख लिया इसको x की जगह पे -1, ये मैंने सपोज कर लिया है, सो इट्स -5 प्लस 3, so -5 plus 3 is -2, right? After finding these solutions, after finding these points, so we need to draw the graph. So let me draw the axis. So this is y-axis and suppose this is x-axis. Let me mark the points here on this axis. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, it's -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो एक्स एक्सिस पे ऐसे पॉइंट मार्क कर देंगे, वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 and so on, right? So this is y-axis, this is x-axis. Now we are going to draw the graph for this. What is point A? 0, 3. So 0, 3 x0 y3 तो point आएगा यहाँ पे. So this is point A. What is point B? 1, 8. 1 के साथ 8. तो 1, 8 is here, right? So this is point B. Now what is point C? So this is B, this is point A. What is point C? -1, -1, -2. So -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है. So the point is here. So this is the point C. So now we need to draw a line. एक line बनानी है which passes through all these 3 points. So this is the line, right? So this is the answer in this case. So ये एक ग्राफ बन गया इसका. The graph of the equation of the line. ये किस लाइन का ग्राफ है? 5x minus y plus 3 equal to 0. So this is the equation, this is the graph of this equation, right? I hope it is clear to you all this question. So this is all about this question. This is the second part. Yes, sir. Now let's move to the next question. Look at this question number 5th. In this question 5, it is given that from the choice given below, choose the equation whose graph are given in 4.6 and 4.5. So in this question, a graph is given in this 4.6 and some equations are given here. तो हमें पता करना है कि ये ग्राफ जो है किस इक्वेशन का ग्राफ है. तो इक्वेशन 1 का ग्राफ है, 2 का है, 3 का है या 4 का है. अब कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन का ग्राफ है ये? तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं. देखो एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है. तो ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट आ रहे हैं. सो अगर ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट आ रहे हैं, सो लेट मी राइट दैट पॉइंट्स. सो पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं 4.6. सो ग्राफ के ऊपर आ रहा है, लाइन के ऊपर आ रहा है, पॉइंट ए इज -1, 1, पॉइंट बी इज 0, 0 एंड पॉइंट सी इज 1, -1. अब हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा इसमें कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट. तो देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन. तो फर्स्ट पार्ट लेंगे तो इस इक्वेशन को चेक करते हैं. तो क्या y इक्वल टू x इज गिवन इन दैट इक्वेशन. तो यहां पे देखो क्या -1 1 के इक्वल होता है. दिस इज x, दिस इज y. क्या अगर यहां पे पुट करें y की जगह पे 1 और x की जगह पे -1, इज दीज टू थिंग्स आर इक्वल? नो, दैट थिंग्स आर नॉट इक्वल. सो द इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. लुक एट दिस सेकंड इक्वेशन, x प्लस y इक्वल टू 0. देखो इनका सम करो, x का सम और y का सम 0 आ रहा है.
यस। इसका सम करो, इसका सम करो, x प्लस वाई, 0 प्लस 0 0 आ रहा है, यस। इसको और इसको सम करो, 0 आ रहा है, यस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। लेट अस चेक दिस थर्ड वन ऑल्सो। तो थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू 2x, y क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए x का। क्या 1, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे ये 1 है, क्या ये ट्वाइस है -1 का? नो, इट्स नॉट ट्वाइस। तो ये इसी से डिससेटिस्फाई हो गया। फोर्थ वाला देखो, इट इज 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हमें थोड़ा बड़ा है तो इसको मेंटली सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लिख के करते हैं। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। तो x को क्या रखेंगे यहां से, x यहाँ पे -1 और y इज इक्वल टू 1 है, तो पुट इट इनटू दिस इक्वेशन। सो 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू -1। 3 प्लस 2 5 आया, इधर -7 आया। इज दिस टू थिंग्स आर इक्वल? नो, दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल, तो ये भी नहीं है। तो द आंसर इन दिस केस इज, which is the right option? Second. So second is the right option in this case. Similarly, look at this 4.7. इसको देखते हैं। पहले पॉइंट लिख लीजिए इसके, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, लेट मी राइट दैट पॉइंट फर्स्ट। एक पॉइंट है -1,3, सेकेंड पॉइंट इज 0,2 एंड थर्ड पॉइंट इज 2,0। सो पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। इस पॉइंट से क्या मिल रहा है हमें, इस पॉइंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। पुट करके देखते हैं। इसमें देखो, इसको पुट करके y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y 3 है और x की जगह पे रखूं अगर -1, देखो यहाँ पे x की जगह पे -1 रखें अगर, तो ये कितना आएगा इस साइड में, तो 2 - 1 1 आएगा, और y कितना है 3, तो ये नहीं है। ठीक है, फिर पहले पॉइंट से डिससेटिस्फाई हो गया। लुक एट दिस सेकंड वन, सेकंड को देखते हैं। y इक्वल टू x माइनस 2, सो y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y की वैल्यू रखो यहाँ पे 3, x की वैल्यू रखो -1 और -2। क्या दोनों इक्वल है? यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 3, तो इक्वल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लुक एट दिस थर्ड वन, y इक्वल टू -x प्लस 2, पुट करता हूं, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू है -1 प्लस 2। क्या इक्वल आ रहा है? यस, ये इक्वल आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड पॉइंट रखते हैं, y की जगह पे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, इसी इक्वेशन में। तो इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2, सो y की जगह पे 2, x की जगह पे 0 प्लस 2, यस, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट है x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में थर्ड पार्ट है ये। तो y की जगह पे 0, x की जगह पे 2, -2 प्लस 2, यस, इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन हियर। और फोर्थ को भी आप चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन नहीं हो सकती है, एक लाइन से तीनों पॉइंटों से पास करे, देयर आर टू इक्वेशंस आर नॉट देयर लाइक दैट, राइट? सो द आंसर इन दिस केस इज थर्ड वन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. Now let's move to the next question. Look at this question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. Okay, thank you. Important question. So one thing they explained about the work done. Work done के बारे में उन्होंने बताया यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं work done जो होता है, it is a concept of science. Work done, and you all know that work done by a body on application of is directly proportional to the distance. तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी बॉडी, उतना ही वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वर्क डन को W से डिनोट करूं, डिस्टेंस को D से। अब आपको ये पता होगा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इक्वल टू का साइन बनाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है फोर्स। सो इट इज गिवन दैट कांस्टेंट फोर्स। So this is the relation given here, W is equal to
force into distance, and we need to represent it in the form of द फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको लेट कर लें। अगर यहाँ पे वर्क डन को लेट कर लें आप, एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वर्क डन को एक्स ले लिया है, ठीक है, और डिस्टेंस को ले लेते हैं वाई, डिस्टेंस इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में फोर्स कितना दे रखा है, 5 यूनिट। फोर्स इज गिवन 5 यूनिट, तो फोर्स की जगह पे लिख देंगे 5, डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे y, और वर्क डन की जगह पे लिख देंगे हम लोग x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ये लीनियर इक्वेशन आ गई है टू वेरिएबल में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 5y इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, also read the graph from the graph। ओके, इसका ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट ग्राफ बनाना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, पहले एक टेबल बनानी होती है, बॉक्स बनाने होते हैं। तो बॉक्स बना लिए हैं, इन बॉक्सों को फिर फिलअप करना होता है। 3 पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं मिनिमम, राइट। सो पॉइंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं y की वैल्यू को, हम लोग y की वैल्यू को लेट करते हैं यहाँ पे। सपोज इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन रिटर्न हियर, x इज इक्वल टू 5y, तो x जो है वो y का 5 टाइम्स है। तो अगर y 0 है तो x कितना होगा, एनीवन? If y is 0, अगर मैंने y को 0 लेट कर लिया, what is x? 0. Yes, it's 0. If y is 1, what is x? 5. Yes, it's 5. It's 5 times. If y is minus 1, what is x? Minus 5. Minus 5. Yes, it's minus 5. So now we need to draw the graph for this. इसके लिए ग्राफ बना देते हैं। So graph axis बना दी है। Suppose this is x axis, this is y axis. Let me mark the point 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 like this. So this is y axis. This is x axis. This is minus x. This is minus y. Point mark है। नंबरिंग इनको दे देंगे। 0,0 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 5,1, x को 5 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। y को कितना चलना है, 1, y की तरफ 1, तो 1 चलना है ऊपर। सो पॉइंट आ गया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज पॉइंट बी। लुक एट दिस पॉइंट, -5, x को -5, -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पे आ गए। -1 चलना है, तो -1 y नीचे की तरफ, तो पॉइंट आ गया है। द पॉइंट इज हियर, राइट। सो नाउ ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस 3 points. So this is the line. So this is the graph for this equation. This question, इसका ग्राफ आ गया है, right? So ये इसका ग्राफ आ गया। This is the graph for the line x equal to 5y. 1 मिनट और लगेगी। इसका थर्ड पार्ट और बता देता हूँ। It's time up today. 1 more minute. Look at this third part here. In the third part, we need to read the graph work done when the distance traveled by the body is. Also read from the graph when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. जब डिस्टेंस होगी 2 यूनिट, तो डिस्टेंस हमने माना था y. सो ये पूछ रहे हैं द थर्ड पार्ट इज y अगर 2 होगा और या y अगर 0 होगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ग्राफ से बताना है। वर्क डन क्या लिया हमने, x, तो x की क्या वैल्यू होगी। देखिए क्वेश्चन में, ग्राफ में अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, x इज ऑल्सो 0 इन दिस केस। लुक एट दिस, व्हेन y इज 2, y अगर 2 है तो यहाँ पे y 2 है तो ऐसे जाएगा 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 इधर, तो y अगर 2 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसे चलते चलते x की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे इससे फाइंड कर लो। y को 2 लिया तो हमारा x इक्वल टू 5y है, तो y को लिया 2, तो x कितना आएगा, 5 into 2 इक्वल टू
10, so in this case it is 10 यूनिट. तो वर्क डन आएगा 10 यूनिट एंड 0 यूनिट. कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की तो वर्क डन कितना करेंगे? कोई भी वर्क डन नहीं है, 0 ही वर्क डन रहेगा. और अगर डिस्टेंस ट्रेवल की हमने 2 तो वर्क डन कितना है? वर्क डन होता है 5 टाइम्स, तो 5 2 10. So this is the answer in this case. I hope this question is clear to you all.